خدا کا شکر ادا کرتی ہوں جو ہم نکموں کو نہ چیزوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے بے وجود چھوڑ دیتا ہے. آمین. سو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بھی روزے کے بارے میں ہے کیونکہ ہم اس خاندان میں اسی لیے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے مناسب جانا کہ اس عبادت کو اپنے گھر میں رکھ سکیں اور خداوند کی شکر گزاری کر سکیں. صبح ساتھ نکالیے گا یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 58 چیپٹر اور اس کے 6 آیت سے میں پڑھنا شروع کروں گی. کلام حق میں یوں لکھا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہے اپنے گھر میں لائے اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے. تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا, تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں. آمین. خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر اس کی خاص برکت و سب کہیں گے آمین. آمین. تو جیسے کہ ابھی ہم نے یہاں پر پڑھا ہم نے روزے کے بارے میں دیکھا کہ یسایہ نبی جو ہے وہ روزے کے بارے میں کیا بتاتا ہے کہ خدا انسان سے کیسا روزہ چاہتا ہے. کیا انسان سے خدا ایسا روزہ چاہتا ہے؟ اگر ہم یہاں سے اوپر پڑھے تو ہمیں ملتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تم اس طرح کا روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. بس تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ جو خدا کو پسند ہو. اکثر آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کے چال چلن سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا. ان کی زبان ویسی, ان کی باتیں ویسی, ان کے کام ویسے, تو انسان جو ہے وہ یہ جج ہی نہیں کر پاتا کہ اس انسان نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. انسان کو اس کے کریکٹر سے لوگ پہچانتے ہیں. اگر ایک دن آپ تھوڑا سا عجیب بیہیو کریں گے تو لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں آج اس نے ایسا بیہیو کیوں کیا ہے, آج اس کا رویہ جو ہے پہلے سے تھوڑا مختلف ہے. اسی طرح جب ہماری زندگی میں ایک ایماندار کی زندگی میں جب کوئی مشکلیں پریشانیاں آتی ہیں تو خدا جب اس کی مدد کرتا ہے تو وہ اس کی شکر گزاری کرتا ہے. اگر آپ یہاں پر اوپر دیکھیں اوپر والی آیات میں تو وہاں پر لکھا ہے کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے, ایسا دن کے آدمی اس میں اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو. انسان اپنے روزے میں سب کچھ کرتا ہے. صرف کئی لوگ ظاہری طور پر اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہاں ہم نے آج روزہ رکھا ہے, ہم نے آج ایسے دکھنا ہے ایسے دکھنا ہے, لیکن خدا جو ہے وہ آپ کے باطن کو جانتا ہے. آپ اگر اوپر ہی اوپر دکھائیں گے اپنے آپ کو دنیا والوں کو کہ میں بڑا راست باز ہوں, آج میں نے روزہ رکھا ہے, وہی فقیروں اور فریسیوں والا روزہ کہ اپنے آپ کو دکھانا ہے کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے تو دوسرے لوگ جانے. لیکن وہ روزہ جو خداوند چاہتا ہے وہ کون سا روزہ کہ انسان اپنے جان کو جو ہے وہ دکھ دے. کیسا دکھ دے؟ کیا انسان اپنے آپ کو کوئی تشدد کرے, کیا اپنے آپ کو مارے؟ کیا انسان اس طرح اپنی جان کو دکھ دے؟ کس طرح انسان اپنی جان کو دکھ دے؟ دکھ دینے کا مطلب ہے کہ اپنی خودی کا انکار کرنا کہ خداوند آج میں نے جو روزہ رکھا ہے اپنے آپ میں سے میں کو ختم کرنا, کہ میں اپنی خودی کا انکار کرتا ہوں. میں اپنے آپ سے خداوند میں جو بھی ہوں, چاہے میرا جو بھی لیول ہے, چاہے میں جتنا بھی بڑا ہوں, لیکن پھر بھی خداوند چاہے میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں, چاہے میرے پاس اتنا بڑا گھر ہے, چاہے میرے پاس ساری برکتیں ہیں ساری نعمتیں ہیں, پھر بھی آج جب میں نے تیرے حضور اپنا روزہ گزرانا ہے تو میں اپنی خودی کا انکار کرتا ہوں. یہ ہوتا ہے اپنی جان کو دکھ دینا, کہ اپنی خودی کا انکار کرنا. اور اس کے بعد ہے اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکا. جھاؤ کسے کہتے ہیں؟ جب آپ نے دیکھا ہوگا, شاید کئیوں نے دیکھا ہوگا کئیوں نے نہیں دیکھا ہوگا, وہ جو ہوتے ہیں نا جو سرکنڈا ہوتا ہے جسے کانے بھی کہتے ہیں, وہ جہاں پر لگے ہوتے ہیں
वो जो जिस जगह से निकलते हैं उनके जो निचले वाला हिस्सा होता है ना, क्योंकि काना तो ऊपर जो है वो स्ट्रेट होता है, वो जो है उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन जो उसके साथ जो पत्ते से निकलते हैं ना, जिनसे वो निकलता है, उसको जो है उसको रीड को उसको जो है झाव कहते हैं। तो जब वो पानी के किनारे जो है वो लगे होते हैं तो होता क्या है, अगर कोई बाढ़ आए या सैलाब आए तो वो जो हार्ड चीज होती है, क्योंकि वो उसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी होती नहीं, तो वो क्या होता है, वो उसी तरह वो पानी के बहाव के साथ जो है वो बह जाती। लेकिन जो झाव की तरह मतलब कि जब लेकिन वो हिस्सा जो होता है जो नरम होता है, जो झुका हुआ होता है, जब पानी उसके ऊपर से गुजरता है तो वो पानी के साथ बहना शुरू हो जाता है, और इसी वजह से वो अपनी जड़ से भी नहीं उखड़ता। और ये होता है अपने आप को झाव की तरह झुकाना। अगर जिंदगी में कोई मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, तो अपने आप को रोजा रख के खुदावंद के हुजूर झुका देना कि खुदावंद मेरी जिंदगी में ये मुश्किलें हैं, ये परेशानियां हैं, मैं अपने आप को तेरे हुजूर झाव की तरह झुकाता हूँ, मैं अपनी खुदी का इनकार करता हूँ, क्योंकि कलाम में लिखा है सादिक अगर 7 बार भी गिरे तो खुदावंद उसे उठा खड़ा करता है, लेकिन जब शरीर गिरता है तो वो उसमें पड़ा ही रहता है। तो ये होता है अपने आप को झाव की तरह झुकाना। और जब वो मुश्किल परेशानियों में आप अपने आप को झाव की तरह झुकाते हो, तब फिर खुदावंद आपको सरफराज करता है। हालेलुया। और इसके आगे है, और अपने नीचे टाट और राख बिछा। टाट और राख बिछाने का मतलब होता है एक गम की हालत में अपने आप को लेके आना। राख जो होती है ये अक्सर मौत को जाहिर करती है, और अक्सर जो है हम जब हमने जो राख का बुद्ध मनाया तो इसमें भी इंसान जो है अपने माथे पर राख लगाकर इस बात को भी जाहिर करते हैं कि इंसान खाक है और खाक में ही लौट जाएगा। अपने आप को इकरार करना कि मैं फानी, लेकिन फिर भी जो है हमारे अंदर से वो मैं नहीं जाता कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अपना जो है हम लेवल जो है हमारा हमेशा होता है कि हमने दूसरे से बढ़कर लगना है। हम ये नहीं कहते कि हम अपने आप को थोड़ा सा हलीम कर ले, हम अपने आप को थोड़ा सा फरोतन कर ले। और जो रोजा है, अगर आपकी जिंदगी में अगर आप रोजा भी रखते हैं, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में मैं है, अगर आपकी जिंदगी में वही पुरानी आदत है, अगर आपकी जिंदगी में वही गरूर है, वही घमंड है, वही दूसरों के साथ सलूक है, तो क्या ऐसा रोजा खुदा पसंद करता है? कि आपके हालात भी वैसे हो, आपका चाल चलन भी वैसा हो, लेकिन फिर भी आप कहें कि मैंने रोजा रखा। खुदावंद कहता है ये वो रोजा नहीं जो मैं चाहता हूँ, बल्कि मैं तो ऐसा रोजा चाहता हूँ कि जुए के बंधन खुले और लोग रिहाई पाए, और ये कि तू अपनी रोटी जो है वो किसको खिलाए? भूखों को खिलाए। दूसरी कंट्रीज में ऐसा होता है कि जब लोग जो है रोजों के अयाम होते हैं तो उन्होंने एक दस्तरखान जो है वो लगाया होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में क्रिश्चियन कम्युनिटीज में ऐसा जो है बहुत कम होता है, लेकिन बनी इस्राएल कौम में भी ये असूल था कि वो जो थे उन्होंने एक चौक में जो है ना लोग आकर बैठ जाते थे, और जो लोग जो भूखे होते थे वो वहां पर आके बैठ जाते थे और दूसरे लोग जो थे खाना देते थे। लेकिन आज हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी फैसिलिटीज मौजूद नहीं हो, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमारे घरों में तो ऐसी फैसिलिटीज है। अगर आप देखते हैं कि आपके नेबरहुड में, आपके पड़ोस में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वक्त जरूरतमंद है, क्योंकि पड़ोसियों जानते हैं कि हमारे जो है पड़ोसी कैसे हैं, उनके पास खाने को कुछ है, पहनने को कुछ है कि नहीं, उनके हालात जिंदगी कैसे। जरूरी है कि ये रोजे के लिए नहीं है कि तू अपनी रोटी भूखों को खिला, बल्कि इस वक्त के लिए भी है कि जब आपके पड़ोस में, आपके आस पड़ोस में, आपके नजदीक आप किसी को जानते हैं, उसके पास अच्छा खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, तो आप उसे दें। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब यीशु अपनी दूसरी आमद में आएगा तो वो कहेगा अपने दाहिनी तरफ वाले लोगों से कि ऐ आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो बादशाही जो बिनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई थी उसे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। तो वो कहेंगे खुदावंद कब हमने ये तेरे साथ किया? तो खुदा कहेगा जब तुमने मेरे छोटे से छोटे खादम के साथ, छोटे से छोटे बहन भाई के साथ ये किया तो तुमने मेरे साथ किया।
जब हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल करते हैं, जब हम भूखों को खाना खिलाते हैं, हम खुदा तरसी के काम करते हैं, तो ये हम अपने लिए नहीं करते कि हमारे नंबर जो है वो बढ़े, बल्कि हम किसके लिए करते हैं? खुदा के लिए करते हैं। कई लोग हैं जो दुनिया में कहते हैं कि हम अच्छे कामों से जो है वो हमेशा की जिंदगी को पालें, लेकिन हम मसीही अच्छे काम क्यों करते हैं? इसलिए कि हम हमेशा की जिंदगी में शामिल हैं। हम दूसरों को दिखाते हैं कि हमारे खुदावंद ने हमें क्या हुक्म दिया है। जब हम अपने चाल चलन से इस बात को वाज़िया करते हैं, और इसकी आगे बरकत क्या है? जब हम अपने आप में जब रोजा रखते हैं, खुदावंद के हजूर अपनी जो कुर्बानी गुजरानते हैं अपने जिस्म की, तो इसके बेनिफिट क्या, इसके फायदे क्या? तो खुदावंद क्या कहता है? तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। अगर आप दुआ करते हैं किसी काम के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसके साथ रोजा भी रखें तो वो आपकी दुआ कहाँ पर? आसमान की तरफ जाएगी। तो खुदावंद जो है वो जल्द जवाब देगा। तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। अगर जिस्म में कमजोरी है, बीमारी, अगर फिर भी रोजा रखा है तो क्या होगा? सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, जल्द शिफा मिलेगी। और आगे लिखा है तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी। तेरी सदाकत मतलब कि तेरी सच्चाई, और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। हरावल का मतलब है जो फौजी दस्ता आगे होता है, और चंडावल का मतलब होता है जो फौजी दस्ता पीछे होता है। मतलब कि खुदावंद कहता है कि तेरी सदाकत तेरी सच्चाई, कि जिस सदाकत के साथ, जिस रास्ते के साथ तुम मेरे साथ चला, वो तेरी हरावल होगी। और फिर खुदावंद का जलाल जो है वो तेरा चंडावल होगा। हालेलुया। और आगे लिखा है तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। अगर इस तरह का रोजा रखेंगे, इस तरह खुदावंद के साथ आपका राबता होगा, इस तरह से खुदावंद के साथ आपकी रफाकत होगी, तो खुदावंद क्या करेगा? जब आप पुकारेंगे तो वो क्या करेगा? जवाब देगा। और आप चिल्लाएंगे तो वो कहेगा मैं तो पहले ही यहाँ मौजूद हूँ, तू मुझे अभी पुकारता है, मैं तो तेरे उन कामों की वजह से जो तूने मेरे लिए किए, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ, क्योंकि तूने मेरे हुक्मों पर अमल किया और तू मुझे अब पुकार रहा है, और मैं तो हमेशा से तेरे साथ हूँ। और कितनी खूबसूरत बात है जब खुदावंद कहे कि मैं यहाँ तेरे साथ हूँ, क्योंकि खुदावंद जो है वो अपने लोगों के साथ हर वक्त रहता है। कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा। वो हर वक्त हमारे साथ रहता है, हर वक्त उसे अपने लोगों की फिक्र होती है। और जो ये शुक्र गुजारी की कुर्बानियां हम गुजरानते हैं, इसके लिए भी खुदावंद जो है हर किसी को ये बरकत और नेमत नहीं देता कि हर कोई जो है वो कहे कि मैंने शुक्र गुजारी की कुर्बानी गुजरानी है तो वो दे देता है। ऐसे कुछ नहीं होता। कई लोग सिर्फ सोचते रहते हैं। ये खुदावंद की खास बरकत होती है जो कई लोग जो है जो खुदावंद के दिल में डालता है वो करते भी हैं, और ये खुदावंद की तरफ से होता है कि खुदावंद अपने लोगों को ऐसा दिल देता है सिर्फ इसलिए कि वो खुदावंद से मोहब्बत करते हैं। जरूरत इस बात की है कि जब हम अपनी जिंदगी में आज अगर हम रोजा रखते हैं तो क्या करें? हम खुदावंद के हजूर अपने आप को झुकाएं, अपनी खुदी का इनकार करें। अगर रोजा रखे तो ये ना दिखाते फिरे कि हाँ मेरा लेवल ये है तो मैंने यहीं पर रहना, इससे नीचे नहीं मैंने आना। अपने आप को पस्त करना, खाली करना, झाव की तरह झुकाना, हलीम होना, फरोतन होना, ये रोजे के जो है ऐसा रोजा खुदावंद कबूल करता है। हालेलुया। सो खुदावंद आज के कलाम से आपको बड़ी